Okay, good time to everyone whosoever is watching this video. So, as you have told me to record a demo video for the subject of accounting, so here I am recording the demo video of chapter accounting equation from class 11. Firstly, I want to clarify that I want to be able to explain the whole chapter in this video, because otherwise it would be video would be of too long. What I will say, video will be of too long duration. That won't be convenient for me to share with you on any kind of social media. So I will explain just the basics of the chapter, and I will just explain a normal practical question, how the question of this chapter could be solved. Secondly, I want to clarify that I will use bilingual language while explaining the topic, because in my opinion, what I think, as a teacher in English medium school, it is like necessary for us to have conversation with the kids in the English language only. But what I feel that while explaining the topic, a teacher can use any kind of language. Language means like he can either explain in fully English or maybe in fully Hindi, not in like, as I say, of English medium school. It won't be convenient to explain the whole topic in just a Hindi language. So, as per my opinion, it is like I use bilingual language so that it could be easy to understand to each and every child. And accounting is like a subject where I can't explain the whole topic in the English language only. I know that there are certain persons who can explain this in fully English, but I am comfortable with using bilingual language. So that's why I will explain the chapter or maybe the topic in just bilingual language. So without wasting further time, let's start with the topic accounting equation. So before this chapter, all you have studied, kids, is that the theory portion of the accountancy. From this chapter onwards, you will start doing the practical problems of the subject. मतलब इससे पहले हमने जो देखा था उसमें हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया था, वो भी इम्पोर्टेंट था. क्यों इम्पोर्टेंट था? इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल में द टर्म which we are going to study in the practical, the term which were used in the, which will be used in the practical problems, like if I tell you liabilities, assets, creditors. So for that part, for that thing, the theory chapters of this subject was necessary. मतलब जब हम creditors बोलोगे तो आपको किस रिलेट होगा कि creditors का मतलब क्या है, ये सब हमने देखा था थ्योरी पोर्शन में. ओके, तो यहाँ से हमारा जो भी है वो प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा फॉर द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी. व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट, आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड यू फ्रॉम दिस चैप्टर onwards you are going to study the practical sums or practical problems of the subject. Okay, and this chapter is important because it will create your base for the practicals. 11th के बाद, like after class 11, you won't be able to study it anywhere, है ना? Neither in class 12 nor in your college classes. Okay, so you have to be focused while studying this chapter so that your base would be strong and you can easily understand the further chapters of the accountancy. Okay, so firstly I will go with the definition. What is accounting equation? Not actual definition, I will tell you what is the accounting equation. Just understand as a level language. Accounting equation is a mathematical expression which shows that liabilities and assets of a firm are equal. So what is accounting equation? It is just a mathematical expression. Why mathematical expression? Because we will study with the numbers in the accountancy. Okay, that's why it is written mathematical expression. So what this equation tells us, that the assets of and liabilities of a firm are always equal. Now you would have studied what are assets and liabilities in those theory chapters. After theory chapters में देखा होगा assets और liabilities क्या होगी. But अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा, just because to understand the equation it is essential to know balance sheet. Equation को understand करने से पहले ये जरूरी है कि हम बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं. तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट फॉर्म करके रखा है just for your better understanding. So इस तरह से हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है. Like this we used to prepare the balance sheet. It is always in the T form. Okay, but it is not necessary. Whenever you will see in the company accounts, the balance sheet will never be found in the T format, है ना? वो horizontally होता है. तो बैलेंस शीट हम कैसे करते हैं? एक लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं
राइट साइड में असेट। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि लेफ्ट है तो हमको लायबिलिटी लेफ्ट में लिखना है, बट इन जनरल ऐसे ही ट्रेंड फॉलो होता है तो हमको यही करना है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज लिख देंगे, यहाँ पर असेट्स लिख देंगे, ये इनका अमाउंट आ जाएगा। और जब भी हम टोटल करते हैं तो ऑलवेज बैलेंस शीट की क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो जिससे आपको पता लगता है कि इक्वेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन इट इज एसेंशियल टू नो बैलेंस शीट। इससे हमको क्या पता लगता है कि जब भी हमारी लायबिलिटीज और असेट्स इक्वल रहेंगे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, और ये मैच करना जरूरी होता है, अदरवाइज योर क्वेश्चन वोंट बी करेक्ट। इफ योर टोटल इज नॉट सेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट समवेयर आई हैव मेड एनी मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट, व्हाई बैलेंस शीट टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल। चलो ये तो हमने देख लिया कि इक्वल आना चाहिए, बट क्यों इक्वल आना चाहिए? It should always be equal because the assets of a business are purchased either by the funds of proprietor, that is called capital, or from funds provided by external parties. ये समझना होगा। हमने यहाँ पे क्यों बोला था कि इक्वेशन समझने से पहले इट इज एसेंशियल टू नो द बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ जितनी भी असेट्स होती है बिजनेस में वो किससे परचेज होती है? Whatsoever assets of a business have, that could only be purchased by the two ways only, either by the funds of proprietor or by the funds that are provided by the external party. Like see here, we have written capital here itself in liability and creditors and bank loan. These are what external liabilities. Sorry, I have marked down. These are the external liabilities and the funds of proprietor, that is capital, which I have also mentioned here. Okay? तो कोई भी कंपनी या फर्म जो है अगर वो कोई एसेट्स खरीदती है तो वो दो टाइप के फंड से आ सकते हैं। फर्स्ट, इधर इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर, द वन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस, और सेकेंडली बाय द एक्सटर्नल पार्टी लाइक बैंक। हमको भी हमने देखा होगा अपने घर में लोन की नाम का एक वर्ड यूज होता है, तो वो क्या है, एक तरह का एक फंड है जो हमको कौन प्रोवाइड करता है? एक्सटर्नल पार्टी, मतलब बाहर के कोई लोग हमको देते हैं। तो इसलिए ये जो है इक्वेशन समझने के लिए हमको बैलेंस शीट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है जितनी भी असेट्स होती है, ध्यान रखना, जो भी असेट्स है किसी कंपनी की वो किससे परचेज होगी? या तो कैपिटल से जो ओनर का अमाउंट है, नहीं तो फिर हमको बाहर से लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, तो इसलिए हमेशा क्या होगा, जो असेट्स है हमारे बिजनेस की वो किसके इक्वल होंगी? लायबिलिटीज के और कैपिटल के। कैसे? सपोज यू हैव परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख, ओके, और आपने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, पहले तो आपके पास 50,000, ठीक है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए 1 लाख रुपीज, बिकॉज मशीन चाहिए आपको। आपके पास 50,000 है, आपने क्या किया? एक्सटर्नल लायबिलिटीज ले ली, आपने एक बैंक को बोला मुझे 50,000 दो, so that I will start up my new business. Okay? तो आपने क्या किया? एक असेट खरीदी, क्या? मशीन खरीदी। उसके लिए आपने एक तो आपके पास अमाउंट था उनका कैपिटल, और दूसरा आपने अपने फ्रेंड से लिया 450,000। ओके, ऐसे करके आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज कर ली। सो दिस प्रूव दैट ऑलवेज आवर असेट शुड बी इक्वल टू द कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑफ आवर फर्म। इस तरह से हमारी इक्वेशन डिराइव होती है कि जो भी एसेट्स है किसी भी फर्म की वो किसके इक्वल होनी चाहिए? लायबिलिटी होनी चाहिए, क्या होती है, ये इक्वेशन हमारा हो गया। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक। अब देखो क्या होता है, एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन चेंज इधर इन असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, एंड इवन आफ्टर चेंज असेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन मतलब आपने कुछ खरीदा या कुछ भी बेचा, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन हुआ। वो क्या चीज रिजल्ट करेगा? रिजल्ट किसमें होगा? तो असेट्स में होगा, लायबिलिटी में होगा और कैपिटल में होगा। वो क्यों होगा? सपोज आपने एक मशीन भी खरीदा, ठीक है, पहले आपके पास एक फर्नीचर था असेट्स में, फिर आपके पास एक आप मशीन भी लिया, तो इससे क्या होगा? आपकी असेट्स में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? चेंज हुआ किसमें? असेट्स में। लायबिलिटी में चेंज कैसे होगा? आपने मशीन खरीदा, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने किसी बैंक से लोन लिया, तो उसने क्या किया? आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज की,
ठीक है, जैसे यहाँ पे था बैंक लोन हमारा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारी कैपिटल है वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद भी हमारी जो असेट्स है वो टोटल किसके इक्वल आएंगी, जो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज है। ओके, तो ये था आपका बेसिक। सबसे पहले हमने क्या देखा, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, वो है दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमको क्या शो करता है, दैट असेट्स ऑफ अ फर्म विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ फर्म। इक्वेशन समझने से पहले क्या जरूरी था, हमको बैलेंस शीट के बारे में जान लेना। वो क्यों था, बिकॉज देखो जो भी हम असेट्स लाएंगे, why to understand the balance sheet is necessary, because whatever assets we will purchase, we will either purchase from our own funds, that is proprietor fund, that is called capital, or from the external party, that is known as liabilities. Okay, third हमने क्या देखा, any business transaction like whether you have purchased any assets, okay, or whether you have sold any kind of asset, that will result in change, and after change and even after change, जब आप कुछ भी कर लोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, चेंज के बाद भी जो हमारी असेट्स है वो किसके इक्वल होगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स होते हैं, इसमें हम 4 रूल्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज दिस 2 इफेक्ट्स, ये अपने थ्योरी चैप्टर में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट है ना, कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो वो 2 इफेक्ट अराइज करती है। लाइक सपोज आपने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज, मशीनरी आई और हमारे पास क्या जाएगा, कैश, कैश विल बी आउटवर्ड एंड मशीनरी इनवर्ड। ओके, तो इससे क्या हुआ, 2 ट्रांजैक्शन हमारे इफेक्ट हुए, मशीनरी आई और कैश गया। सिमिलरली आपने लोन लिया बैंक से, तो क्या हुआ, हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, ठीक है, तो कैश आया हमारे पास और हमारे लायबिलिटीज, बैंक लोन क्रेडिटर हो जाएगा, जो बैंक है क्रेडिटर वर्ड भी आप ये याद रखो कि जो भी हमको जिससे भी हम पैसे लेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिटर, दैट पर्सन, द पर्सन हु पोसेस मनी विल बी नोन एज क्रेडिटर। ओके, तो हर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा अकाउंटेंसी में तो उसके 2 जगह इफेक्ट आएगा। ओके, सेकंड रूल क्या है, एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव, मतलब उसका उल्टा कर देना। लाइक इफ एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, जो भी हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, एंड व्हाट इफ द इनकम अराइज इन आवर बिजनेस, दैट विल बी एडेड टू आवर कैपिटल। इट इज नोन एज वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो जाना। एक्सपेंस होगा तो कैपिटल से डिडक्ट कर रहे हैं, इनकम होगा तो किसमें ऐड कर देंगे हम, कैपिटल में। ओके, एंड व्हाट इज द लास्ट रूल, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच। जब भी आपके सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन आई है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट वी विल सी अ नॉर्मल बेसिक सम टुडे, है ना, तो उसमें उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, हमारी इक्वेशन मैच हो जानी चाहिए। हमारी जो भी असेट्स है वो किसके इक्वल रहेगी, हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की। कुछ भी ट्रांजैक्शन किया होगा उसके बाद इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज नोट ऑन इट, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व अवर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ओके, तो ये हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जिससे हमको वी हैव टू फ्रेम एन अकाउंटिंग इक्वेशन। सो लाइक आई विल अगेन रिमाइंड यू द टर्म रियल रिटर्न हियर, असेट्स always should be equal to liabilities plus capital of our business. What are the assets? That is, in general you can say any kind of property or any kind of things which can generate income for the business. Liabilities जो भी हमको देना है, like whatever we owe to pay, है ना, what we are liable to pay, मतलब दायित्व होना है, और plus capital. अच्छा, now you will ask that why capital is written here? Capital is what the amount which owner has invested, मतलब अगर मैं अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ तो वो लायबिलिटीज में क्यों है, इसके लिए एक कंसेप्ट हमने देखा था, है ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्हाट व्हिच टेल्स अस दैट द बिजनेस एंड द ओनर, द वन हु स्टार्टेड द बिजनेस, आर ऑलवेज सेपरेट। ओके, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमको बताता है कि ओनर की जो भी इंट्रोड्यूस करता है नो टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट वुड बी लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, मतलब बिजनेस को उसको वापस देना है, इसलिए हम कैपिटल को निकाल लेते हैं लायबिलिटीज के साथ। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड क्रेडिट।
हाउ आई हैव रिटन दिस जस्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. लाइक फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. X started business with rupees 1 lakh as capital. X ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लगा के कितना 1 लाख रुपीस. तो आई हैव रिटन कैपिटल ऑलरेडी देयर. ओके ना. परचेज फर्नीचर. So from this furniture I have written furniture here. Okay. And the cash, how cash is done here, like X ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो कैश में लाया होगा, ऐसा जनरली मान लो. तो मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया. तो कैश फर्नीचर आया था, ऐसा आया. Goods purchase के like in the balance sheet or in the accounting we can't write the goods. Okay, for that the word stock is used in accounting. Then creditor purchase goods on credit, मतलब उसने उधार पर कुछ सामान खरीदा है ना, without paying any kind of cash or check, he has purchased some goods. तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, वो creditor मतलब liability बन जाएगी हमारी, हमको उसको देना है ना कुछ भी हमें. That's why it will be known as creditor. Okay. So let's start with the question. Now you will see at the end if the equation will be matched. We have studied 3 rules, है ना. First क्या था, every transaction will have 2 effect, मतलब 2 जगह उसका इफेक्ट आएगा. सेकंड, कुछ भी अगर एक्सपेंस होगा तो कैपिटल से डिडक्ट होगा, और अगर कुछ इनकम होता है सेम विल बी एडेड टू द कैपिटल. और थर्ड रूल हमारा क्या था, what would be our was our third rule, कि the equation at the end should be matched. मतलब हमेशा कोई asset और किसकी इक्वल आनी चाहिए, liabilities और capital. फर्स्ट एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस, रुपीज 1 लाख कैश कैपिटल. तो 1 लाख कैश इंट्रोड्यूस किया और वहां पे हमारी कैपिटल आ गई. ठीक है. एक ट्रांजैक्शन के बाद हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे तो ये इक्वल आ रहा है 1 लाख एंड 1 लाख. सेकंड क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 50,000. एक्स हैज परचेज फर्नीचर फॉर इट्स बिजनेस. अब देखो फर्नीचर परचेज किया मतलब अमाउंट देके लिया होगा, अमाउंट कैसे दिया, कैश में दिया. सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर कैश अमाउंट. मतलब 20,000 का हमने फर्नीचर लिया तो 20,000 कैश में पे किया हमने, प्लस यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा 20,000 का फर्नीचर. अब हमारा फर्नीचर की वैल्यू जो पहले 0 थी इस ट्रांजैक्शन से पहले, अभी वो कितनी हो जाएगी 20,000. सो आफ्टर दिस अगेन आवर इक्वेशन वुड बी मैच. तो देखते हैं हमारी इक्वेशन मैच हो रही है नहीं. कैश हमारे पास कितना रह गया 1 लाख था, 20,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, 80,000 हमारे पास कैश बचा, 20,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया जो यहाँ तक नहीं था. ओके. तो 80,000 प्लस 20,000 वो कितना हो गया 1 लाख. ओके. अभी तक हमारी इक्वेशन करेक्ट चल रही है. नाउ वी मूव टू थर्ड ट्रांजैक्शन. एक्स हैज परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000. एक्स ने अपने लिए 10,000 में गुड्स परचेज किए, अगेन कैश लिया गुड्स लिया. तो कैश में से 10,000 माइनस स्टॉक में 10,000 प्लस ये वाला. ओके. तो अब देखो इसके बाद हम वापस इक्वेशन मैच करते हैं. 80,000 हमारा बचा था, कैसे बचा था 1 लाख उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद 20,000 को उसमें से फर्नीचर लिया है ना, और 10,000 का बाहर का कुछ लिया. जैसे देखो 1 लाख मैं अपने बिजनेस में लगा दिया. आई हैव स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख. 20,000 आई हैव पेड to purchase the furniture. 10,000 I have paid for purchasing the goods for my business. So now how much cash I have left with 70,000. कितना कैश बचा मेरे पास 70,000, that is here. Okay. 20,000 का फर्नीचर था एंड 10,000 के मैंने गुड्स परचेज किए. अगेन हम इक्वेशन मैच करते हैं. हम 70 20 प्लस 10 इक्वल टू 1 लाख. अभी तक हमारी इक्वेशन मैच कर रही है, मतलब असेट्स जो भी हमारी किसके इक्वल हो रही है, दैट इज इक्वल टू द लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ आवर बिजनेस. ट्रांजैक्शन कोड गुड्स परचेज के क्रेडिट है. व्हाट डज इट मीन बाय क्रेडिट, लाइक एक्स हैज परचेज गुड्स इन थर्ड ट्रांजैक्शन. व्हाट वी हैव सीन, एक्स ने गुड्स परचेज किए बट ही हैज पेड कैश टू द पर्सन फ्रॉम whom he has purchased the goods. Now he has purchased on credit. It's like he has got the goods, but he did not pay anything or any kind of amount to him. तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे देखो 10,000 गुड्स थे पहले, यहाँ पे देखो इसको भी हटा दीजिए. 70,000 का हमारे पास कैश है, 20,000 का फर्नीचर और 10,000 के गुड्स हमारे पास.
एक्स ने 10,000 की गुड्स और परचेज किए तो क्या हो जाएगा प्लस 10,000 इधर, और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? बिकॉज उसने 10,000 क्रेडिट पे परचेज किया, कैश वगैरह उसने पे नहीं किया। इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी वापस मैच करेंगे। 70,000 कैश है हमारे पास, 20,000 फर्नीचर है, 20,000 में क्या है गुड्स है हमारे पास, तो टोटल कितना आ रहा है 1,10,000। इधर क्या होगा 10,000 का हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया प्लस 1 लाख के कैपिटल किया हमारा, ओके वो ऐसे लीजिए, तो 1,10,000 और 1,10,000, ओके। नाउ लेट्स मूव टू ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। अच्छा, रेंट पे किया, that is not any kind of asset for the business and nor any kind of liability. Neither assets, paying rent is neither assets and nor liability for our business. वो क्या एक तरह का expense है, and we have studied rule number 2. Any kind of expenses will be deducted from capital and any kind of income will be added to the capital. तो rent पे किया, ये हमारा क्या expense है, मतलब खर्चा है, इसको हम किसमें से माइनस करेंगे? हमारी कैपिटल में से 1,000 इधर माइनस किया, और जब हमने रेंट पे किया तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी दे दिया उसको, कैश में दिया होगा हमने रेंट, तो हमारे कैश में से भी ये माइनस होगा। तो यही का डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होगा, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। हमने रेंट पे किया, हमारी कैपिटल से भी माइनस हुआ, आया तो कुछ नहीं हमारे पास, कैपिटल भी माइनस हुई और कैश भी माइनस हुआ। क्यों माइनस हुआ? फर्स्ट तो जो रूल कहता है अकाउंटिंग का, कोई भी एक्सपेंस हो उसको आप कैपिटल में से माइनस करोगे। सेकेंडली हमने जब रेंट पे किया है तो कैश में पे किया, तो इस तरह से दो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुई हमारी, ठीक है। इसके बाद हम हमारी टोटल देखते हैं इक्वेशन। 70,000 कैश था, उसमें से 1,000 रेंट दिया तो कितना आ गया 69,000 हमारा कैश बचा। फर्नीचर ऐसे चीज है 20,000 का, और गुड्स ऐसे चीज है हमारे पास 20,000। इसके बाद क्या है 10,000 का हमारे पास क्रेडिटर इंक्रीज हो गया बिकॉज हमने कैश में परचेज नहीं किया, और 99,000 की हमारी कैपिटल हो गई, ठीक है। फिर देखो लास्ट क्या है 5,000 एक्सपेंस रिसीव हुआ है एज अ कमीशन, तो अभी हमने देखा है अकाउंटिंग रूल में कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसको कैपिटल में डिडक्ट करेंगे, और कोई भी इनकम होगी तो कैपिटल में उसको ऐड करेंगे। तो कमीशन क्या हमारे लिए इनकम है, तो इसको हम किसमें ऐड करेंगे? एक तो कैश रिसीव हुआ 5,000 का, तो कैश में इंक्रीज होगा प्लस यहाँ कैपिटल में भी इंक्रीज करेंगे। तो इसके बाद हमारी टोटल क्या देगी 74,000 कैश हो गया हमारे पास, 20,000 फर्नीचर और 20,000 की गुड्स, और यहाँ पे 10,000 हमारे पास क्रेडिटर है जो उसने उधार का सामान दिया था, और 1,04,000 हमारे पास हो जाएगी 1,04,000 की कैपिटल, जैसे हुई 5,000 ऐड करने के बाद। तो इसके बाद हमारी टोटल देखते हैं इक्वेशन की कितनी आ रही है 1,40,000 एसेट्स की आ रही है, और 1,40,000 की किसकी आएगी हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इससे क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई और ये हमारा सम करेक्ट हो जाएगा। तो एक बेसिक सा प्रॉब्लम था आपका अकाउंटिंग का, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया, और जो भी कंसेप्ट थे आपको वो मैंने क्लियर किए। लाइक अकाउंटिंग रूल्स क्या थे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच टेल्स अस दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर हमने रूल्स देखे थे अकाउंटिंग के 3, और उसके बाद हमने ये बेसिक सा प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो अभी डेमो वीडियो के लिए आई विल रिकॉर्ड दिस वन ओनली, है ना। सो डू वॉच द वीडियो एंड टेल मी हाउ टू डू इट, ओके, थैंक यू।